everybody, welcome my dear pirates to today's session, and we are here for a new, not series, but yeah, a very new session for you all, where I am going to basically summarize all the formulas for class 8 mathematics. Okay guys, so आज basically part 1 है फॉर्मूला चीट शीट ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स का. ठीक है, तो व्हाट इज फॉर्मूला चीट शीट? इट्स बेसिकली अ सिंगल वीडियो जिसमें आप एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हैं. क्योंकि क्लास 8 का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस इन 2 पार्ट्स. आज हमारा एक पार्ट सेशन मतलब एक सेशन है जिसमें हम हाफ ऑफ द चैप्टर्स कवर करेंगे, एंड देन नेक्स्ट सेशन में हम रिमेनिंग चैप्टर्स को कवर करेंगे. ओके बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो all those who don't know me and are new on this channel, well, I am Sana Khan. I am your mathematics master teacher from Vedantu and also your friend. And my job is to make mathematics the easiest subject for you all. So अगर आप इस channel पे new है तो channel को subscribe करना मत भूलिएगा, and don't forget to give a thumbs up if you enjoy today's session. So let's give this video 100 likes. What say pirates? Okay guys, chalo. So what all chapters are we going to cover today? We are going to cover rational numbers, linear equations, understanding quadrilaterals, data handling, and two very important chapter having lots of formula, square and square roots, cube and cube roots. Okay guys, so let's start with chapter number 1. I will just minimize my screen so that you all can see clearly. This is chapter number 1, rational numbers. What all things we have learned also, bachcho. In this video, I will also revise the definitions, one-liner definitions and one-word answers for the entire chapter. Okay. तो सबसे पहले हमने rational numbers की chapter में पढ़ा था. What are natural numbers? Numbers starting from 1. Whole numbers, numbers starting from 0. Integers having negative natural numbers along with the all whole numbers. Positive integers, you all know all the positive natural numbers. Negative integers, all the negative natural numbers till infinity. And then comes the rational numbers. Rational numbers are the numbers which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q can't be equal to 0. So any number including decimals, fractions, integers, they all are part of rational numbers. Well, in this chapter, the most important thing that we have learned is ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स. कौन कौन से ऑपरेशन हमने पढ़े थे, जल्दी से बताओ मुझे. क्लोजर, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स. राइट. सो व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? याद है बच्चों मैंने क्या हिंट दिया था आपको? क्लोज्ड रूम, ऐसा रूम जिसमें सिर्फ रैशनल नंबर है और कोई नहीं हो सकता है. तो इस रूम के अंदर दो नंबर्स अगर आपने लिए और उनको ऐड किया तो आंसर रैशनल नंबर ही आना चाहिए. अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर रैशनल नंबर ही आना चाहिए. अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर रैशनल नंबर ही आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है. नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. If we take two any rational numbers and we change the order, for example, if we are doing a plus b and we are making it as b plus a, the answer should be same. तो जब हमने different operations apply किया, then we have found that addition follows commutative property, multiplication follows commutative property, but subtraction and division do not follow commutative property. They are like Shin-chan. Addition and multiplication, Doraemons, right? Next is associative property. Instead of two rational number, अगर हम तीन rational number लेते हैं और उनके order को बदल देते हैं, है ना, a plus b plus c को बना दिया a plus c plus b और b plus c plus a, order बदल दिया. तो ऑर्डर बदलने के बावजूद हमने ये फाइंड आउट किया कि जंबल करने से भी हमारा आंसर नहीं बदल रहा है. लेकिन ऐसा कब होता है? सिर्फ एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में. डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं. एंड सेम टू सेम वी हैव लर्नड अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज इट? इट सेज दैट a number can be multiplied to the sum of two different numbers in a way that first we can multiply the numbers and then we can add them. मतलब आप मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, बट मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन एंड ओवर डिविजन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. नेक्स्ट कम्स बच्चों, या also to mention ABCD, all the numbers mentioned here are non-zero rational numbers. ठीक है.
नेक्स्ट आता है बच्चों चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अलजेब्राइक इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल होता है एंड एटलीस्ट वन ऑपरेशन अप्लाइड होता है उस वेरिएबल पे अलोंग विद कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, राइट। देन व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? अ लीनियर एक्सप्रेशन, an algebraic equation is becomes a linear equation if highest power of the variable is only 1, यानी x का पावर 2, x का पावर 3 नॉट एक्सेप्टेबल। देन हमने पढ़ा था कि हम सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन का। सिंपली जो भी इक्वेशन हमारे पास है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं और फिर बाय बैलेंसिंग मेथड और बाय ट्रांसपोजिंग मेथड हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसे हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इट इज सिंपली अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कोई कॉमन फैक्टर्स हैं देन वी रिमूव इट and we get the simplest form of an equation. And similarly if we have a variable in denominator then हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से वेरिएबल को पहले हमेशा रिमूव कर देते हैं, देन ओनली उस पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चों अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। वेल इस चैप्टर में आपको पता है सिर्फ 4 बेसिक फॉर्मूले हैं, बाकी सारी थ्योरी ही इन्वॉल्व है। सबसे पहले आती है प्लेन सरफेस, प्लेन कर्व्स, ओपन कर्व्स, क्लोज कर्व्स, जो ऑलरेडी आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। सो सरफेसेस विच आर फ्लैट आर कॉल्ड एज प्लेन सरफेसेस। Plane surfaces, when you join a number of points on a plane surface, you get a plane curve. Plane curve हो सकता है open, जिसके open ends होते हैं, या फिर close, जो कहीं से भी open नहीं होता है. Then comes polygon. Polygon वो curve होते हैं जो simple होते हैं, closed होते हैं, and made up of only line segments. 3 गोल्डन वर्ड्स आपको याद होंगे फॉर अ डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन। फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि पॉलीगन्स को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका होता है नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग। अगर बेसिकली 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है नंबर ऑफ साइड्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड सो ऑन। फिर आता है वैल्यू ऑफ साइड। अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो रेगुलर पॉलीगन, अगर नॉट इक्वल है यानी अनइक्वल है तो इररेगुलर पॉलीगन। एंड देन कम्स कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं? 1 और मोर देन 1 डायगोनल्स आर आउटसाइड द पॉलीगन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस तरीके का फिगर बनाया तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डायगोनल बनेगा वो आउटसाइड द पॉलीगन है, तो इस टाइप के पॉलीगन्स को हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन, and the other one which is having all diagonals inside is called as convex polygon. फिर आता है बच्चों इंटीरियर ऑफ अ कर्व एंड एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व एंड ऑन द कर्व। यू नो सारे पॉइंट्स जो अंदर लाई करते हैं बाउंड्री के अंदर उसे हम इंटीरियर बोलते हैं, बाउंड्री के बाहर एक्सटीरियर कहते हैं, एंड जो बाउंड्री के ऊपर है उसे हम ऑन द बाउंड्री कहते हैं, ठीक है, ऑन द कर्व। देन हमने पढ़ा था बच्चों पहला फॉर्मूला, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल सेज दैट sum of all the angles is 180 degree. फिर आता है दूसरा फॉर्मूला इस चैप्टर का, sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. इसके बाद आता है angle sum property of polygons. Well, polygons में हमने 2 पढ़े थे बच्चों, इंटीरियर एंगल्स का सम, एक्सटीरियर एंगल्स का सम। तो पॉलीगन्स में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है n-2 इंटू 180। बट ये n क्या है? n इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, जितने भी साइड है, 5 साइड का पॉलीगन है, 6 साइड का, 7 साइड का, 4 साइड का, 3 साइड का, n-2 इंटू 180 डिग्री विल गिव यू सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, बट sum of all exterior angle is always 360 degree, always 360 degree, वो कभी नहीं बदलता है, हमेशा 360 डिग्री ही रहता है, ठीक है। Then comes kind of quadrilaterals. So what are the different kinds of quadrilaterals? Rectangle, square, parallelogram, rhombus, trapezium and kites. Different type of quadrilaterals जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे, and उनके प्रॉपर्टीज भी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी? सबसे पहला पॉलीगन होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में होते हैं बच्चों ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल। फिर आता है पैरेललोग्राम, उसका बेटा। पैरेललोग्राम में दोनों ही साइड्स ऑपोजिट जो हैं वो पैरेलल भी होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। फिर आता है रोम्बस,
पैरेललोग्राम का बेटा, रोम्बस में पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि चारों साइड आपस में इक्वल भी होते हैं, ठीक है। So it becomes a special parallelogram. Then is the second son of parallelograms, rectangle. ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल्स का वैल्यू 90 डिग्री होता है। और फिर आता है स्क्वायर, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं प्लस सारे साइड्स इक्वल भी होते हैं। सो दिस बिकम्स अ स्क्वायर। तो ये है क्वाड्रिलैटरल्स जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। देन कम्स बच्चों चैप्टर नंबर 5, डेटा हैंडलिंग। वेल डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा जो होता है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, थिंग्स, जिसे हम कलेक्ट करके रखते हैं ताकि हम उसमें से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। और डेटा हैंडलिंग हमें बताता है कि इस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि उससे हम इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से निकाल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब ऐसा डेटा जिसे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। ग्रुप्ड डेटा जिसे ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। फिर आता है टैली टेबल। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू ऑर्गेनाइज डेटा, जिसमें हम डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ग्रुप करते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ रेपिटेशंस। सो हियर टैली यूजेज अ सिंबल जिसमें 1 जो है वो सिंगल स्लैश से डिनोट किया जाता है, 2 डबल स्लैश, 3 ट्रिपल डैश, 4 टाइम स्लैश, बट 5 जो है वो डिनोट करते हैं हम 1 2 3 4 स्लैश एंड 1 क्रॉस स्लैश। इस तरीके से हम 5 बनाते हैं। और फिर 6 के लिए 5 + 1, 7 के लिए 5 + 2 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है बच्चों हिस्टोग्राम्स एंड कंटिन्यूअस डेटा इंटरवल्स। कंटिन्यूअस डेटा इंटरवल्स क्या होते हैं? कई बार हमारा डेटा इतना बड़ा होता है कि अगर हम एक एक डेटा की बात करें ना तो रात हो जाएगी, मतलब बहुत ह्यूज सेट ऑफ डेटा होता है। तो उसमें हमने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं उसको हम ग्रुप में डाल देते हैं, तो कम से कम एक ग्रुप में अगर 10 डेटा भी आ गया तो डेटा रिड्यूस हो गया ना, 10:1 बन जाएगा। तो हम बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग आसान बन जाए। अब ये ग्रुप हम कैसे बनाते हैं? एक क्लास इंटरवल डिसाइड करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड अगर मुझे काउंट करना है तो मैंने डिसाइड किया कि 10 10 10 10 ट्रीज का मैं क्लास इंटरवल बना देती हूँ। मतलब कितने बच्चों ने 0 से 10 ट्रीज प्लांट किए, कितने बच्चों ने 10 से 20 ट्रीज प्लांट किए, कितने बच्चों ने 20 से 30 ट्रीज प्लांट किए। इस तरीके से मैं क्लास इंटरवल बना दूंगी और फिर उस ग्रुप में मैं बच्चों को पुट कर दूंगी। अब हर क्लास इंटरवल का एक लोअर लिमिट होता है और एक अपर लिमिट होता है, 0 to 10। सो 0 से शुरू हो रहा है, 10 पे खत्म, यानी 0 इज द लोअर क्लास लिमिट, 10 इज द अपर क्लास लिमिट, ठीक है। फिर आता है क्लास का साइज, कि वो क्लास कितना बड़ा है। इट विल बी टोल्ड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर हमने पढ़ा था पिक्टोग्राफ्स के बारे में। पिक्टोग्राफ्स हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था, क्लास 7 में भी पढ़ा था। ऐसे ग्राफ्स जिसको हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। और पिक्चर्स किसके होते हैं? पिक्चर्स रिप्रेजेंट द डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमंस के बारे में या नंबर ऑफ पीपल के बारे में काउंट करना है तो हम फेस, स्माइलीज, इमेज, कुछ ऐसा हम यूज करेंगे जो ह्यूमन डिनोट कर सके। लाइक दैट अगर हमें एप्पल की सेल डिनोट करनी है तो हम एप्पल का इमेज यूज करके उस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Then we have learnt about bar graphs. Bar graphs are basically graph which are made up of rectangular bars, and these rectangular bars tell the data according to their height. उनकी जो height होती है वो बताती है कि डेटा का वैल्यू क्या होगा। फिर आता है बच्चों हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस बार ग्राफ, मतलब यही बार ग्राफ, बस इसको चिपका दो, जितने गैप है उसको हटा दो और सारे बार ग्राफ को ऐसे चिपका दो, वो बन जाएगा हिस्टोग्राम। बट हिस्टोग्राम जो है वो कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया हिस्टोग्राम्स। एंड देन वी गॉट डेटा पाई चार्ट, डेटा रिप्रेजेंटेशन। और पाई चार्ट जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट था क्लास 8 में, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किसी भी डेटा को हम एक सर्कुलर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, सच दैट जैसे
कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है तो हम उसे अपने बर्थडे पर एक बड़ा पीस देते हैं केक का, जस्ट टू शो कि आप हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हो, है ना, ज्यादा वैल्यू रखते हो। तो वैसे ही यहाँ पर हम इस सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं ऐसे सेक्शंस में जिसमें जितना बड़ा सेक्शन मतलब उतनी बड़ी वैल्यू। जैसे मैथमेटिक्स अगर ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं तो ज्यादा बड़ी उसकी सेक्शन वैल्यू होगी। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और वो ये होता है बच्चों कि 100% इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। ये होता है आपका एक फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है आपके सेक्टर्स को ड्रॉ करने में। और दूसरा होता है वैल्यू गिवन आउट ऑफ टोटल वैल्यू, ठीक है। ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एवरी डेटा। अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, अगर आपको डिग्री में आंसर चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री कर दो। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाती है in percentage or in degree according to the question. So in this chapter we have basically learnt about finding square of a number or finding square root of a perfect square number. Well, basically this chapter has lots of formulas which are quite confusing to us. So let's summarize them one by one. Firstly, what is square of a number? Basically, if you multiply a number with itself, then the result obtained is the square of a number. What is a perfect square? A perfect square is a number which is obtained by multiplying a number with itself again. What is now? Every perfect square number can be of 2 digit, 3 digit, 1 digit, anything like that, right? But all the numbers will have a unit digit, of course. So perfect square numbers have special unit digits. What kind of special unit digits? Well, perfect square numbers will always have 0, 1, 4, 5, 6 or 9 in their units place, no matter what. They won't have numbers like 2 or 3 or 7 or 8. Okay, so any number which is having these numbers in the unit place, they are not perfect squares. Next we have learned some important properties related to perfect square number. Number 1, you all remember perfect triangular numbers. What are perfect triangular numbers? Which can form triangles. For example, 3 dots can form triangle. 4, 5, 6, 6 dots can form triangle. 7, 8, 9, 10, 10 dots can form a triangle. So 1, 3, 6, 10, they all are what? Perfect triangular dot numbers, right? Now, one of the property is that अगर हम किसी भी दो ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही मिलता है। जैसे कि 6 + 10 16, 3 + 6 9, 1 + 3 4, एंड आपको पता है 4 है 2 का स्क्वायर, 3 है 3, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब किसी भी कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने पे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। ये एक फैक्ट है, प्रॉपर्टी नहीं है बट ये एक फैक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से एक और फैक्ट होता है बच्चों कि अगर हम अगर हम किसी भी परफेक्ट और लेट्स से चलो अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करें एंड उसके उस नंबर के +1 का स्क्वायर फाइंड आउट करें तो इन दोनों के बीच में जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ n होंगे। मतलब 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 2 × 3 नंबर्स होंगे। तो ये भी एक फैक्ट होता है जो हमने स्क्वायर नंबर्स के बारे में ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट हमने जो ऑब्जर्व किया था एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स। ये मेथड परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं डिसाइड करने के लिए भी यूज होता है, बिकॉज जब भी हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं जैसे कि 1 is square of 1, 1 + 3 is square of 2, 1 + 3 + 5 square of 3, 1 + 3 + 5 + 7 square of 4, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 square of 5। so जब भी हम 1 से लेकर किसी भी n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार हम ऑड नंबर्स को ऐड करते जाते हैं तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही मिलता है। ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो स्क्वायर ना हो। इंटरेस्टिंग, राइट? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों perfect squares are numbers which are obtained by squaring a whole number and also addition of two consecutive natural numbers। मतलब
अगर आप देखोगे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 को 4 प्लस 5 लिखा जा सकता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को 12 प्लस 13 लिखा जा सकता है। मतलब ऑड नंबर के स्क्वायर को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को। दिस इज वन फॉर्मूला। वन मोर फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न्ड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑड नंबर्स। कौन से नंबर्स? ऑड नंबर्स इज इक्वल टू द मिडिल नंबर। जैसे 11 और 13 को मल्टीप्लाई किया, 11 और 13 के बीच में क्या आता है? 12। तो 11 इंटू 13 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 1। आप ये किसी भी ऑड नंबर के साथ चेक कर सकते हो, जैसे कि 13 इंटू 15 विल बी 14 स्क्वायर माइनस 1, जैसे कि 17 इंटू 19 विल बी 18 स्क्वायर माइनस 1। ऐसा हमेशा होता है, किसी भी दो ऑड नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट उनके बीच वाले इवन नंबर के स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। एंड अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं विथ इटसेल्फ। वी कैन आल्सो यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू मेक आवर कैलकुलेशन इजियर। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों इसी चैप्टर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। व्हाट आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? किसी भी राइट ट्रायंगल में हमेशा जो आपके 3 साइड्स होते हैं उसमें से तीनों साइड का वैल्यू होगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके m की वैल्यू 3 है तो 3 2 6, 3 स्क्वायर माइनस 1 एंड 3 स्क्वायर प्लस 1। यानी जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा होगा m स्क्वायर प्लस 1 एंड द अदर टू साइड्स विल बी ट्वाइस ऑफ m एंड m स्क्वायर माइनस 1। ये हमेशा आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1। और ये फॉर्मूला यूज होता है चेक करने के लिए कि गिवन नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर हैं टू द चैप्टर ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ना क्यूब एंड क्यूब रूट्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट हार्डी रामानुजन नंबर 1729। 1729 is the smallest possible number that can be expressed as sum of two cubes। मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब और c क्यूब प्लस d क्यूब, दो अलग तरीके से सम ऑफ टू क्यूब्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा दुनिया का सबसे छोटा नंबर है। आई नो आप बोलोगे यार इतना कौन सोचता है, बट है तो है, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है? वेल अगर किसी नंबर को हम 3 बार लगातार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है परफेक्ट क्यूब ऑफ दैट नंबर। एंड यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब्स में हमने पाया कि हमेशा यूनिट डिजिट पे 1 8 7 4 5 6 3 2 9 इनमें से कोई भी नंबर्स आते हैं। तो अब आप बोलोगे मैम बचा क्या? कुछ भी तो नहीं। वेल यस, कुछ भी नहीं बचा, बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने ऑब्जर्व की। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है बच्चों कि 1 के क्यूब में यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है, 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट हमेशा 2 होता है, 8 होता है, सॉरी। बट अब आप बोलोगे कि ठीक है, तो ये बच्चों कि अगर आप 22 का भी क्यूब करोगे ना उसके भी यूनिट डिजिट में 8 आएगा। अगर 32 का क्यूब करोगे उसके भी यूनिट डिजिट में 8 आएगा। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 2 है उसके परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट में 8 आता है। एंड सेम इज फॉर 8। 8 वाले नंबर्स का यूनिट डिजिट होता है 2, 3 वाले नंबर्स का यूनिट डिजिट होता है 7 और 7 वाले नंबर्स का यूनिट डिजिट होता है 3, 4 का 4 ही रहता है, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। यानी सिर्फ 4 ऐसे नंबर्स हैं, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनका यूनिट डिजिट डिफरेंट होता है, बाकी सारे नंबर्स का यूनिट डिजिट एज इट इज रहता है। नेक्स्ट बच्चों हमने सीखा था सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे कि हमने स्क्वायर में देखी थी। अगर हम ऑड नंबर्स का एडिशन करें तो हमें परफेक्ट क्यूब मिलता है, लेकिन ऑड नंबर्स को हमें छोड़ते जाना पड़ेगा। जैसे वहां पे हम क्या करते थे 1 1 प्लस 3 1 प्लस 3 प्लस 5 हम कंटिन्यू रखते थे, बट यहाँ पे वी विल लीव ऑड नंबर। जैसे 1 इज 1 क्यूब, देन 1 को छोड़ दो, 1 के बाद क्या आता है 3 एंड 5, 3 एंड 5 के बाद क्या आता है 7 9 11, उसके बाद क्या आता है 13 15 17 19, उसके बाद क्या आता है वो लिखो। तो इस तरीके से अगर आप ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको मिलते हैं परफेक्ट
क्यूब्स। एंड देन हमने पढ़ा था बच्चों क्यूब रूट ऑफ अ नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यू हैव टू चेक कि किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें ये नंबर मिल रहा है, मतलब विच नंबर इज फॉर्मिंग अ ट्रिपलेट, दैट number becomes the cube root of the given number. Okay guys, so that's all about class 8 formula cheat sheet part 1. Well, maybe next week or next to next week I will bring part 2 of this, so stay tuned for that. And also guys, if you guys want to do well in your annual exams, then I have the best solution for you all. ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ आपको YouTube पे पढ़ाती हूँ बच्चों, वैसे ही मैं वेदांतों के एप्लीकेशन पे ही पढ़ाती हूँ। अब ये वेदांतों का एप्लीकेशन खास क्यों है, तो वहां पे एक्चुअली आपको फुल सिलेबस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी फॉर योर एनुअल एग्जाम्स विथ फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो फुल सिलेबस की प्रिपरेशन विद डिटेल्ड रिविजन एंड क्विजेस फॉर प्रैक्टिस हैव स्टार्टेड ऑन द वेदांतो एप्लीकेशन जस्ट फॉर द एनुअल एग्जाम स्पेशली। और इसके साथ आपको मिलेंगे रीप्लेस सारी लाइव क्लासेस के, आपको मिलते हैं नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स, डाउट सॉल्विंग ऑफ ऑल द चैप्टर्स, प्लस डाउट सॉल्विंग के लिए क्लास टीचर्स इन एवरी सेशन, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क असाइनमेंट, वर्कशीट असाइनमेंट एंड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अनलिमिटेड एक्स्ट्रा क्लासेस, ताकि आपके पास कोई लिमिटेशन ना रहे कि आपको किस टीचर से पढ़ सकते हो किस टीचर से नहीं पढ़ सकते हो, ऐसी कोई लिमिटेशन भी नहीं रहेगी आपके पास। एंड इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 6300 पे। ये एक महीने का कॉस्ट नहीं है, ये पूरे सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक। और आईसीएसई के लिए ओनली 5175। ओके गाइस, so do try it out. It's an amazing subscription. एनरोल करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, यूज माई कूपन कोड। वेल, मेरा कूपन कोड है SKPRO, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके गाइस, सी यू ऑल देयर इन द क्रैश कोर्स वेयर वी आर गोइंग टू क्रैक द एनुअल एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में मंडे को 2:30 बजे। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय, बाय गाइस।